Hello, CA Foundation people, CA aspirants. Today, in this session, we are going to discuss CA Foundation Paper 4, that is Business Economics, May 25. Let's start with the paper solving without wasting much time. Myself, Professor Chirag Thakkar. Today, we'll be taking care of the solution for May 25. I'll read the question and only explain the concept, as well as we'll try to explain the concept also. Let's start with it without wasting time. The first question: the firm will be making maximum profit by expanding output to the level where. क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट विल बी द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल. बेसिकली प्रॉफिट मैक्सिमम, मेकिंग मैक्सिमम प्रॉफिट बाय एक्सपेंडिंग आउटपुट. यानी ये हमें पूछ रहे हैं, दे आर आस्किंग फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट. सो योर आंसर इज वेरी वेरी सिंपल, दैट मार्जिनल रेवेन्यू is equal to marginal cost. MR is equals to MC. MR is equals to MC. ये वो पॉइंट है जिसे हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल भी कहते हैं. क्या कहते हैं? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल. नेक्स्ट, it was an easy question, first question of the paper. What will happen to equilibrium price and equilibrium quantity when demand increases and supply decreases? Okay, this question, ये जो सवाल है, this is from chapter number 4, market. ठीक है, determination, price determination under different market. So they are asking कि equilibrium price और equilibrium quantity पे क्या फर्क पड़ेगा. So अगर हम diagrammatically जाते हैं, अगर हमारे पास यहाँ देखो छोटी सी जगह है, थोड़ी सी, will solve here only. So this is my original equilibrium, this is my supply curve, this is my demand curve. This point is called original equilibrium. Now what they are telling us, or what they want us to do, what will happen to equilibrium price and quantity when demand increases, supply decreases. If demand increases, it means demand curve will shift to right, and supply decreases, so supply curve will shift to left. Demand curve will shift to right, supply curve will shift to left. What will be the effect on equilibrium price and equilibrium quantity? But one thing you have to check, sir, proportion is not given, that increase in demand is greater than decrease in supply, or decrease in supply is greater than increase in demand. Proportion नहीं दिया है. क्या नहीं दिया है? Proportion. तो मुझे ये बरोबर पता है कि जो डिमांड है, अगर वो राइट में जाता है, so something it goes like this. सर सप्लाई जो है वो लेफ्ट में जाता है, तो इट गोज लाइक दिस. इट कुड बी एनीथिंग बिकॉज दे हैवंट गिवन अस द प्रपोर्शन. तो जब प्रपोर्शन नहीं दिया होता है तो कोई भी एक फैक्टर या कोई भी एक वेरिएबल जो है वो अनसर्टन हो जाता है. क्या हो जाता है? अनसर्टन. तो हियर वी कैन से दैट कि सर मेरी इक्विलिब्रियम प्राइस तो बढ़ रही है, इक्विलिब्रियम प्राइस राइजेस, दैट इज फॉर श्योर, बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज अनसर्टन. व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट गिवन विथ द प्रपोर्शन इंक्रीज और डिक्रीज. अब जो डायग्राम अभी हमने साइड में बनाया, ऐसा ही एक डायग्राम और बन सकता है जहां पे सप्लाई कर्व डिक्रीज होगी तो और लेफ्ट की तरफ जा सकती है, दूर कहीं. डिमांड कर्व और नजदीक से इंक्रीज हो सकता है, बिकॉज प्रपोर्शन इज नॉट गिवन. सो योर आंसर इज इक्विलिब्रियम प्राइस राइजेस बट चेंज इन द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज अनसर्टन. चेंज इन द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज अनसर्टन. ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. सपोज दैट सोल प्रोप्राइटर इज अर्निंग total revenue of 1,20,000 and is incurring explicit cost of 95,000. If the owner could work for another company of for rupees 30,000 a year, which of the following statement is false? So first we need to understand what is explicit cost. Explicit cost का मतलब होता है accounting cost, है ना सर? The cost which we can record in books of accounts.
And if owner could work for another company for rupees 30,000 a year, which of the following statement is false or incorrect? तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? We can calculate the thing first. Directly भी आंसर ले सकते हैं. Say for example, my total revenue is 1,20,000. सर अगर उसमें से मैं मेरा इकोनॉमिक कॉस्ट माइनस करता हूँ, व्हाट इज माय इकोनॉमिक कॉस्ट सर? 30,000. व्हाट इज माय इकोनॉमिक कॉस्ट? 30,000. सर 30,000 नहीं है सर, एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज 95,000. 30,000 तो वो कोई और कंपनी के लिए काम करता तो उसको मिलता. तो सर यहाँ आ जाएगा 95 के. इसको जब मैं माइनस करता हूं तो मुझे अकाउंटिंग प्रॉफिट मिलता है. क्या मिलता है? अकाउंटिंग प्रॉफिट, दैट इज 25 के. और what is the implicit cost? That is foregone cost. Implicit cost is also called opportunity cost. वो कितना है? 30 के. मतलब सर जो मेरा इकोनॉमिक लॉस है वो है 5 के. इकोनॉमिक लॉस है वो क्या है? 5 के. अब उन्होंने पूछा है कि which one of the following statement is false? इसमें से क्या गलत है, इसमें से क्या सही नहीं है? So firm incurred an economic loss of 5k. Yes, that is right. We have calculated economic loss. The firm is having accounting profit of 25,000. वो भी हमारे पास है. Total economic cost is 30,000. No, ये तो समझ में ही दे दिया था कि explicit cost is 95,000. Explicit cost is nothing but what? It is nothing but, sir, explicit cost 95,000 plus implicit cost 30,000. What is economic cost? Explicit plus implicit है ना सर, उसको इकोनॉमिक कॉस्ट कहते हैं. तो इकोनॉमिक कॉस्ट 30,000 नहीं है, वो तो इम्प्लिसिट कॉस्ट है. तो सर आपका जो आंसर आ जाएगा, योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर थर्ड इज ऑप्शन सी, दैट टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट इज 30,000. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग और विच टाइप ऑफ मार्केट allocate productive resources to producers and help ensures that those resources are used efficiently? Which type of market allocate productive resources to producer? Okay, resources to producer, and that to allocation. Productive resources, land, labor, capital, ये सब क्या है? बोले सर फैक्टर्स हैं. जी हाँ, बिल्कुल सही, फैक्टर्स हैं. यही फैक्टर्स इस्तेमाल करके, यानी यही फैक्टर्स का यूटिलाइजेशन करके प्रोडक्शन होता है, और एफिशिएंटली इन्हीं रिसोर्सेज को क्या करना है? यूटिलाइज. तो सर कौन सी मार्केट ये अलोकेट करेगी सही तरीके से? फैक्टर मार्केट. विच मार्केट इट इज? फैक्टर मार्केट. सो योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑप्शन बी, दैट इज फैक्टर मार्केट. नेक्स्ट, ओ वाओ, न्यूमेरिकल्स है अब यहाँ पे. So question number 5 and question number 6 we have. Now what they have asked, what they want us to solve. They have given quantity and they have given a total cost in rupees. Let's understand the fifth question. What is the average variable cost when 20 units are produced? Okay, so they want us to find AVC at 20 units. Yes, क्या ढूंढना है हमें? AVC at 20 units. Now what will be the formula? Sir, it will be TVC upon Q. TVC upon Q. अभी now to find TVC we must aware about total fixed cost as well as total variable cost. Formula क्या होता है? TC is equals to TFC plus TVC. Now we have total cost. Total cost कितना है हमारे पास? 20 units का total cost है हमारे पास 320. समझ में आ रहा है? टोटल कॉस्ट हमारा कितना है? 320. अब उसमें से हम, ये थोड़ा लेंदी वाला मेथड बताया, डायरेक्ट भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं. सर फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट फॉर 0 यूनिट इज इक्वल्स टू नथिंग बट TFC. वो हमें दिया है 100, तो ये आया 100. सो डेफिनेटली ये आ जाएगा 220. सो सर व्हाट इज TVC फॉर, you can say 20th unit? So now we have answer. Sir 220 is the TVC cost. And कौन सी यूनिट का हमें AVC ढूंढना है? हमें ढूंढना है 20th यूनिट का. कौन सा ढूंढना है? 20th यूनिट का. तो 20th यूनिट के लिए मैं उसको डिवाइड करूंगा 20 के साथ, आपका आंसर आएगा 11. सो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए योर आंसर इज ऑप्शन सी. Now, between 10th and 20 unit, what is the marginal cost per unit? Okay, so हमें find करना है MC at 20. Formula काफी simple है. Now let's understand.
हियर द चेंज इन क्वांटिटी इज नॉट कांस्टेंट, तो आप सीधा सीधा TCN माइनस 1 अप्लाई नहीं कर सकते, आपको फॉर्मूला लगाना होगा चेंज इन TC अपॉन चेंज इन Q। क्या अप्लाई करना होगा? चेंज इन TC अपॉन चेंज इन Q। सो सर 10th क्वांटिटी का TC भी लगेगा और 20th क्वांटिटी का भी TC लगेगा, तो ये इट गोज लुक लाइक दिस 320 माइनस 220 अपॉन 20 minus 10. Sir, it goes like this 100 upon 10. Answer is 10. So, sir, option A is the right one for between 10 and 20th unit. What is the marginal cost per unit? Option A is the right answer. Let's go with the next thing. अच्छा, मार्केट से आया फिर से सवाल, ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 was from the chapter number 3 production and cost, basically cost, unit 2, chapter 3. Now we'll moving forward to question number 7. Which of the following is not a condition for price discrimination? ओके, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कौन से मार्केट में होता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है मोनोपोली में, या हो सकता है मोनोपोली में। मोनोपोली पावर, मार्केट पावर, सिंगल सेलर और अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई. So there are four main conditions, or there are certain conditions for price discrimination, charging different prices to the different buyer for the same product. पहला, प्राइस पावर तो होता ही है उनके पास. मार्केट सेगमेंटेशन एक उसका सिचुएशन होता है, या यू कैन से उसकी एक कंडीशन होती है, मार्केट सेगमेंटेशन. सर, डिफरेंट इलास्टिसिटी इन डिफरेंट मार्केट, डिफरेंट इलास्टिसिटी इन डिफरेंट मार्केट, एंड नो राइट टू रीसेल, नो राइट टू रीसेल. ठीक है, राइट टू रीसेल नहीं हो सकता. तो लेट्स अंडरस्टैंड इसमें से कौन सा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कंडीशन नहीं है. Seller should have price setting power. Yes. The seller should be able to divide his market into 2 or more sub-market. Yes. The price elasticity of the product should be different in different sub-market. Yes. Sir, it should be possible for buyer to low priced market to resell the product to the buyer of high price market. No, no, no. सर ये पॉसिबल नहीं है. बायर एक मार्केट से खरीद के फिर उसे खुद ही क्या करेगा, हाई प्राइस मार्केट में जाके किसी को बेचेगा. दैट इज नॉट पॉसिबल. सो नॉट अ कंडीशन. तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड, उन्होंने पूछा नॉट अ कंडीशन. आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन, आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी. इट शुड बी possible for buyer of low priced market to resell the product to the buyer of high price market. तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, ऑप्शन डी जो है वो सही है. अंडर सेकेंड डिग्री, क्वेश्चन नंबर 8, अंडर सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन डिफरेंट प्राइजेस आर चार्ज्ड फॉर डैश. ACPU, कुछ लोग उसको PGU भी प्रोनाउंस करते हैं, कुछ लोग उसको PGU भी प्रोनाउंस करते हैं. ACPU, ACP ने हमें 3 डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन दिया है. Yes, the concept is from monopoly. 3 degrees of price discrimination. पहला first degree price discrimination is all about services. ठीक है. Second degree price discrimination is all about quantity. The more quantity you will buy, the less amount you have to pay as a buyer. And the third degree price discrimination is all about different point, like different elasticity, different you can say different geographical market. So there are 3 degrees, and they have asked us for second degree price discrimination. Second degree price discrimination is all about different quantity sold, is all about different quantity sold. ठीक है. Next, which of the following is not the feature of monopoly market? Which of the following is not a feature of monopoly market? Not पूछा है. तो कौन सा इसमें से मोनोपोली मार्केट का फीचर नहीं है? ऑप्शन ए, सिंगल बायर ऑफ प्रोडक्ट. ऑप्शन बी, बैरियर टू एंट्री. ऑप्शन सी, नो क्लोज सब्सटीट्यूट. ऑप्शन डी, मार्केट पावर. सर डायरेक्ट क्वेश्चन है और आंसर भी डायरेक्ट आ ही जाएगा सर. अ सिंगल बायर ऑफ द प्रोडक्ट, दिस इज नॉट द फीचर ऑफ मोनोपोली. अच्छा, सिंगल बायर ऑफ प्रोडक्ट, सिंगल बायर, ओनली वन बायर, ये एक्चुअली एक मार्केट है जिसका नाम हम कह सकते हैं दैट इज मोनोप्सोनी मार्केट. कौन सा मार्केट? मोनोप्सोनी मार्केट, वेयर देयर इज अ सिंगल बायर, वेयर देयर इज अ सिंगल बायर.
सो मोनोपोली का फीचर नहीं है, वो पूछा है। सिंगल बायर ऑफ अ प्रोडक्ट इज नॉट द सिंगल सेलर होता है, सिंगल बायर नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 10 assumes that when the price is rupees 30, quantity demanded is 19 units. When the price is rupees 28, quantity demanded is 20. हाँ तो पहले देखो, प्राइस बढ़ा, सॉरी प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ा, वो दिख रहा है। व्हाट इज द मार्जिनल रेवेन्यू रिजल्ट्स फ्रॉम एन इंक्रीजिंग इन द आउटपुट from 19 unit to 20th unit. Okay, so they have asked us to calculate MR. For which unit? 20th unit. For which unit? 20th unit. So MR for 20th unit. So formula goes like this, TRN minus TRN minus 1, क्योंकि 19 to 20 है तो क्वांटिटी में आने वाला चेंज इज कांस्टेंट, दैट इज 1। तो हम ये फॉर्मूला ले सकते हैं। लेकिन TRN मतलब हो गया TR20 और इधर आएगा 20 माइनस 1 यानी कि 19। बट फॉर दैट आई नीड अ TR, दैट इज प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो सर 19 थ्रीजा क्या आ जाएगा, 19 थ्रीजा और 28 टूजा। तो सर when price is 28, the quantity demand is at 20 unit। तो सर आंसर आपका आना चाहिए 560 माइनस 570। अभी 570 कहाँ से आया, 19 इंटू 30 किया। 560 कहाँ से आया, 28 इंटू 20 किया। तो 560 में से 570 गए। योर आंसर इज -10। सो मार्जिनल रेवेन्यू फॉर 20th यूनिट इज -10, दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन बी। सो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर आएगा वो आएगा सर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। Oligopoly market, where there are few sellers, oligopoly market in which few firms come to a common understanding with each other in fixing the price or output or both, मतलब everyone will come together, एक कंसेंसस पे आएंगे, प्राइस सेट करेंगे और एक टोटल आउटपुट फॉर मार्केट फिक्स करेंगे। विच टाइप ऑफ मोनोपोली इट इज सर? It is called collusive oligopoly. It is called which oligopoly? Collusive oligopoly. For question number 11, your answer is option B. During, this question was from market chapter. During the upswing phase of the business cycle, involuntary unemployment is dash. सर अपस्विंग बोला ना, अपस्विंग, तो इसको एक्सपेंशन कंसीडर करेंगे। ये दिख रहा है सर हमको अपस्विंग। अपस्विंग को हम क्या कंसीडर करेंगे? इंक्रीज इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो इट इज एक्सपेंशन फेज। इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज डैश, हाईएस्ट ऑलमोस्ट जीरो, लोएस्ट नॉट अफेक्टेड। सर मॉड्यूल लाइन, इट इज मॉड्यूल, दैट इज अवर स्टडी मटेरियल लाइन, है ना सर। इट इज ऑलमोस्ट जीरो, इट इज ऑलमोस्ट जीरो। एक्सपेंशन फेज जो होता है, एक्सपेंशन फेज में जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो ऑलमोस्ट, एंड वॉट एवर अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर इन एक्सपेंशन, इट कुड बी सर या तो वो स्ट्रक्चरल हो सकता है या तो फ्रिक्शनल हो सकता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, एक्सपेंशन फेज में जो भी अनएम्प्लॉयमेंट अगर एग्जिस्ट कर रही है तो वो या तो फ्रिक्शनल हो सकता है या तो स्ट्रक्चरल हो सकता है। इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑलमोस्ट जीरो। सो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए जो आंसर है वो है बी। The level of national income and expenditure declines rapidly. तो you need to understand the term rapidly यानी फटाफट, quick. During which phase of business cycle? See, अगर सिर्फ क्वेश्चन होता कि नेशनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर डिक्लाइंस, रैपिडली ये शब्द नहीं होता, तो माइट बी ए चांसेस के आप और मैं क्या टिक करते पता है? हम डाउन स्विंग टिक करते। अभी अपस्विंग और रिकवरी तो होगा नहीं, तो हम क्या टिक करते? डाउन स्विंग। बट सर डाउन स्विंग नहीं आएगा क्योंकि रैपिडली पूछा है। तो क्या आंसर आएगा? थ्रो और डिप्रेशन, दैट इज द फोर्थ फेज। ऐसे तो नंबर नहीं है बट फोर्थ फेज, दैट इज डिप्रेशन। नाउ इन ऑल काइंड ऑफ बिजनेस,
the different phase of business cycle generally occurs as in all kind of business. Different phases of business cycle generally occurs having perfectly timed cycle. No fixed time cycle but regular. Boom have a longer period than depression. Depression have a longer period than boom. In all kind of business, the different phase of business cycle generally occurs as. सर ऐसा जो phases होते हैं expansion, peak, contraction, true, ऐसा phases का कोई fixed time नहीं है. It is indefinite. Regular है, होगा जरूर, लेकिन ऐसा नहीं है कि सर वो एक specific time पे ही आएगा. तो सर your answer is no fixed time cycle, but definitely the phases are regular in nature. So option B. King's demand curve model of oligopoly is also called. King's demand curve. किसने किंग की डिमांड कर्व, किंग डिमांड कर्व जो है वो ओलिगोपोली इंडेफिनेट डिमांड कर्व दुनिया को बताया. बंदे का नाम है, अंकल का नाम है पॉल स्वीजी. अंकल का नाम क्या है? पॉल स्वीजी. इन इकोनॉमिक्स इन आवर सिलेबस देयर आर 4 पॉल अंकल्स. 4 पॉल अंकल हैं सर. एक पॉल सैमुअल्सन है, एक पॉल डगलस है जो प्रोडक्शन फंक्शन में आते हैं, एक पॉल स्वीजी है और एक पॉल क्रुगमैन है. पॉल क्रुगमैन आपको आएगा इंटरनेशनल ट्रेड चैप्टर 9 में. तो ऐसे 4 पॉल अंकल हैं सर. अब यहाँ तो पॉल दिया नहीं है ऑब्वियसली, उन्होंने सिंपली पूछा है स्वीजी मॉडल, मैकेंजी मॉडल, ऑस्कर मॉडल, ठीक है, न्यूमन्स मॉडल. तो आंसर वी नो, डायरेक्ट क्वेश्चन है. ये फंडामेंटल टेस्ट करते हुए, हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करते हुए May 25 के पेपर में क्वेश्चंस आए हैं. सर आंसर इज स्वीजीज मॉडल. आंसर इज नथिंग बट व्हाट? स्वीजीज मॉडल. नेक्स्ट. There is a war going between country A and country B for last 2 years. Now, in the current year, both the countries have signed a peace agreement and war has come to end. Now, both the country have started to rebuild the losses caused due to the war out of their own funds. Which type of cause of change in the business cycle is this for country A? Internal, external, both internal and external. This is not a cause of change in the business cycle. There are 2 causes. There are 2 ways of causes of business cycle. One is internal and one is external. Sir, war. अब war तो रुक गई है, इसको बोलते हैं post war reconstruction. So your answer will be, ये है हमारा external cause, post war reconstruction. क्या है? CA फाउंडेशन एस्पिरेंट्स, क्या है? एक्सटर्नल कॉज. क्या आएगा? एक्सटर्नल कॉज, यानी कि पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन. एंड योर ऑप्शन इज बी. क्वेश्चन 16 का आंसर आएगा ऑप्शन बी. Which of the following organization is responsible for compilation of national accounts statistics? Sir, Ministry of Finance, Central Government, RBI, CSO, Director of Economics and Statistics. Direct question, like it is self-explanatory kind of thing. Your answer is Central Statistical Organization. National Account Statistics पूछा है, आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन ए. Now, which of the following is not the significance and usefulness of national income estimate? What is national income? Sir, national income is a macroeconomic concept, so estimated basis पे calculate होता है. बस तो उन्होंने वही पूछा है कि significance क्या नहीं है. Business uses its forecast to future demand forecasting to identify the sector wise composition. हाँ जी, नेशनल इनकम का जो फिगर आएगा, जो भी एक एस्टिमेटेड नंबर आएगा, उससे हमें ये पता चलेगा कि कौन से सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है ओवर द ईयर, वो पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में, टू असिस्ट इन मेकिंग पॉलिसीज रिलेटेड टू इन्फ्लेशन, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी. नेशनल इनकम हेल्प्स, फिगर ऑफ नेशनल इनकम हेल्प्स इन पॉलिसी मेकिंग, दैट इज योर मॉनेटरी पॉलिसी. टू असिस्ट इन मेकिंग पॉलिसी रिलेटेड टू पॉपुलेशन ग्रोथ. हाँ देखो सर, पॉपुलेशन ग्रोथ का जो रिलेशन है वो एक्चुअली नेशनल इनकम से कुछ नहीं,
मतलब इफ गवर्नमेंट वांट्स टू पास टू चाइल्ड पॉलिसी, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, तो उससे नेशनल इनकम से कुछ ज्यादा में उसके लिए नेशनल इनकम का फिगर नहीं देखा जाएगा कि भाई असिस्टेंट और नॉट अ सिग्निफिकेंस। नेशनल इनकम हम पॉपुलेशन ग्रोथ को काउंट करने के लिए या सर पॉपुलेशन ग्रोथ में चेंज लाने के लिए नहीं करते हैं सर। सो आपका आंसर आ जाएगा टू असिस्ट इन मेकिंग पॉलिसीज रिलेटेड टू पॉपुलेशन ग्रोथ। नाउ an indicator, question number 19 chapter 5 business cycle से है, an indicator which gives information about the rate of changes of the expansion or contraction is called expansion and contraction. Now expansion and contraction both और लिखा है, लेकिन सर ये simultaneous changes, which changes simultaneous changes, ये है ना, आंसर आ जाएगा आपका को इंसिडेंट इंडिकेटर, या उसको कॉनकरेंट भी कहा जाता है। गाइस बोथ लीडिंग एंड लैगिंग नहीं आएगा। हाँ देखो एट अ टाइम एक ही इंडिकेटर, मतलब सर योर आंसर इज को इंसिडेंट इंडिकेटर, योर आंसर इज को इंसिडेंट इंडिकेटर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस GNP ऑफ द कंट्री। GNP, GDP नहीं पूछा है, क्या पूछा है? GNP, ग्रॉस नेशनल। तो मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री including NFIA. What is NFIA? Net factor income from abroad। यानी GDP में R-P अगर ऐड हुआ, जीडीपी में क्या ऐड हुआ? R-P, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है। कहाँ जाना है? डोमेस्टिक से नेशनल। दे हैव आस्क्ड अस फॉर GNP, नॉट द जीडीपी। हमें नेशनल प्रोडक्ट के बारे में पूछा गया है, नेशनल प्रोडक्ट। तो अगर हम सिंपली बोलते हैं मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, वो जीडीपी होता है। But when you include NFI, that is net factor income from abroad, that is R-P, receipts minus payment, your answer is it is the market value of all final economic goods and service produced within the domestic territory of country, including net factor income from abroad. Net income from नहीं sir, net factor income from abroad. ठीक है, your answer is A. It was simple sir, basics. Now GDP at factor cost. Okay, you need to calculate factor cost. So factor cost कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो भी देखो दो तरीके हैं। पहला कि सर फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस पे जाना है, फिर से मैं बताता हूं, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो मुझे फैक्टर कॉस्ट ढूंढना है बेसिकली। तो मैं उसमें से IT माइनस करूंगा और सब्सिडी ऐड करूंगा, IT माइनस करूंगा और सब्सिडी ऐड करूंगा। सो आई वांट टू कैलकुलेट जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम जीडीपी एट मार्केट प्राइस। सो आई वांट टू रीच हियर, आई एम हियर। तो मैं क्या करूंगा? माइनस IT प्लस एस। क्या करूंगा? माइनस IT प्लस एस। फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस जाना है, मुझे मार्केट प्राइस दिया हुआ है, ध्यान से अच्छे से समझना, मुझे मार्केट प्राइस दिया हुआ है और मुझे फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। ठीक है, थोड़ी देर पहले जो हमने लिखा था, बात समझिए, दो अलग चीजें होती है ना। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। तो सर फैक्टर कॉस्ट ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? फैक्टर कॉस्ट ढूंढने के लिए मैं माइनस IT करूंगा और प्लस सब्सिडी करूंगा। कॉस्ट है ना, कॉस्ट। सब्सिडी क्यों ऐड हो रहा है? बिकॉज सब्सिडी इज गिवन बाय द गवर्नमेंट, इट इज एन एक्सपेंडिचर फॉर गवर्नमेंट। एंड व्हाई IT इज माइनस और सब्ट्रैक्टेड? बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ रेवेन्यू। एंड ये जो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, दिस इज फ्रॉम द एक्सपेंडिचर मेथड। विच मेथड? एक्सपेंडिचर। तो हम इसका आंसर लिखेंगे या टिक करेंगे, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट is equals to GDP at market price minus IT plus taxes. So sir 21st का आंसर आ जाएगा C. Now 22nd हमें ढूंढना है इन्फ्लेशन रेट। इसी बैठा बिठाया फॉर्मूला है उसका, इन्फ्लेशन रेट का बैठा बिठाया फॉर्मूला है। तो हाउ टू कैलकुलेट? सो जीडीपी डिफ्लेटर, पहले कौन से ईयर का ढूंढना है? सर ईयर 3 का ढूंढना है, ईयर 3। सो अभी ईयर 3 के लिए मुझे दो इंफॉर्मेशन लगी रिक्वायर्ड है, ईयर 3 एज वेल एज ईयर 2। तो हाउ टू कैलकुलेट? इट इज सो सिंपल, इट इज इजी। 144 ये दो डेटा मुझे काम के है, जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ प्रीवियस ईयर और एक जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ करंट ईयर। प्रीवियस ईयर को बेस ईयर भी कहते हैं, है ना सर यहाँ पे। तो सर
योर आंसर विल बी, इट गोज लाइक दिस, 144 माइनस 125. क्या आएगा? 144 माइनस 125 अपॉन 125 इंटू 100. तो जब आप इसको कैलकुलेटर पे टक टक करके कैलसी पे आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए 15.20%. आई विल रिपीट, फॉर्मूला क्या है? जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ करंट ईयर माइनस जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ बेस ईयर यानी यहाँ प्रीवियस ईयर, अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ बेस ईयर इनटू 100. सो सर इट इज 15.20. It is nothing but what? 15.20. Next. Which of the following is an indicator of standard of living of the country under the concept of national income? Standard of living is calculated from per capita income. Average income per person भी बोलते हैं इसको. क्या कहते हैं? Per capita income. National income divided by total population. So this is an indicator of standard of living. And national income से per capita income भी calculate होती है ना. नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम को अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला काफी सिंपल है, नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन. सो पर कैपिटा इनकम इज एन इंडिकेटर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. The amount of money in the hands of individual that is available for their consumption or savings is known as in hand. Consumption or savings, it means या तो transaction purpose होगा, यानी कि सर खर्च करना होगा, या तो आगे जाके उसको सेव करना होगा. सो इट इज कॉल्ड डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, एक्चुअल परचेसिंग पावर, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम. योर आंसर इज सी. Which of the following is included in the calculation of personal income under the concept of national income? सर एक्चुअली अगर हम बात करें तो पर्सनल इनकम जो है इसके अंदर अर्नड इनकम प्लस ट्रांसफर इनकम यानी अनअर्नड इनकम दोनों कंसिडर होता है. सो पर्सनल इनकम इज लाइक अर्नड इनकम. अर्नड इनकम यानी फैक्टर इनकम, जो भी रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, कमीशन, ब्रोकरेज, ठीक है, ये सारे अर्नड इनकम जहां इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट हुआ है उस पर्सन का, प्लस ट्रांसफर इनकम. ट्रांसफर इनकम और अर्नड इनकम मिलके पर्सनल इनकम आती है. हमें सवाल पूछा गया है कि आउट ऑफ विच कौन सी ऐसी चीज है कैलकुलेशन ऑफ पर्सनल इनकम में कंसिडर होता है. तो पहला ऑप्शन है अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन. हाँ, इसको हम अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी बोलते हैं. ये तो होता है. रिटेन्ड अर्निंग, इनडायरेक्ट टैक्सेस, नहीं, टैक्सेस आर तो लीकेजेस. कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी, ये तो खर्चा हो गया, लेकिन ये गवर्नमेंट का हो गया सर, गवर्नमेंट की तरफ से होता है ये खर्चा एक तरह का सर ट्रांसफर पेमेंट हो जाएगा. इनडायरेक्ट टैक्सेस, रिटेन्ड अर्निंग, जी नहीं, बिल्कुल. तो सर सिंपली अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस. Which of the following is true? Which of the following is true in relation with private income? जवानों ठीक से सवाल पढ़िएगा. In relation to private income under the concept of national income. तो बॉस, what is private income? First thing first, it is an income accrued to the private sector from all sources within the country, outside the country also, both factor income as well as transfer income. So it is just a basic meaning उन्होंने पूछा है कि भाई private income in relation to private income कौन सा इसमें से concept है. Sir, it is simple. It is the income earned or accrued to the private sector from all sources within and outside the country. That is private income. Private income is all about sector income. Which income? Private income is all about private sector का income. Now, 27th question. Which of the following is true about the basic price in the determination of national income? Basic price. ठीक है, तो अभी अगर हम समझे कि पहले आता है सर फैक्टर कॉस्ट. फैक्टर कॉस्ट में प्रोडक्शन टैक्स एंड प्रोडक्शन सब्सिडीज, ये दो चीजें होती है. तो मतलब मुझे पहुंचना है कहाँ पे? बेसिक प्राइस पे, मार्केट प्राइस पे नहीं, बेसिक प्राइस पे. तो जब फैक्टर कॉस्ट में हम प्रोडक्शन कॉस्ट ऐड करते हैं, देखो ऐसा होता है, फैक्टर कॉस्ट में
जब प्रोडक्शन टैक्स ऐड होता है और प्रोडक्शन सब्सिडी माइनस होती है, तब जाके मुझे मिलता है बेसिक प्राइस। बेसिक प्राइस में भी, अब सवाल नहीं पूछा है बट जस्ट बता देता हूँ, बेसिक प्राइस में भी जब हम प्रोडक्ट टैक्स ऐड करते हैं और प्रोडक्ट की सब्सिडी माइनस करते हैं तो मुझे मिलती है मार्केट प्राइस। बट क्वेश्चन जो है बेसिक प्राइस तक का ही। तो बेसिक प्राइस इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट माइनस मैन्युफैक्चरिंग टैक्सेस माइनस मैन्युफैक्चरिंग सब्सिडी। नहीं, बेसिक प्राइस इज इक्वल्स टू, अभी देखो डेप्री का तो यहाँ कोई स्कोप है नहीं एज ऑफ नाउ इस फॉर्मूला में, तो गया। बेसिक प्राइस इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नहीं, बेसिक प्राइस इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स प्लस प्रोडक्शन सब्सिडी। अब टेक्निकली ये भी रॉन्ग है। अब ये जो है ना, ये यहाँ पे ये जो आप देखते हैं, ये यहाँ माइनस साइन होना चाहिए था, तो हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन डी आता। मतलब यहाँ पे इस पेपर में, इस क्वेश्चन पेपर में हुई है एक गड़बड़। नाउ अब क्या करें सर, एक स्कोप है, everyone will get ग्रेस मार्क्स, क्योंकि उन्हीं की तरफ से एक प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, देखो बाजू में हमने बैठा बिठाया फॉर्मूला है। सो यहाँ आईसीआई की तरफ से आपको क्या मिल जाएगा, एक ग्रेस मार्क मिल जाएगा। तो जो यहाँ पे इस क्वेश्चन को लेके आपको टेंशन में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक है उनकी। तो 1 मार्क विल बी गिवन टू यू, अगर ऐसा मान के चलते हैं आईसीआई जो है एक ग्रेस मार्क देगा। क्वेश्चन नंबर 27, अगर वहां माइनस हो रहा था तो वही आंसर था, बट बाकी के 3 तो इररिलेवेंट है। यस, ग्रेस मार्क विल बी गिवन टू यू, ग्रेस मार्क्स विल बी गिवन टू, 1 मार्क तो मिलेगा सर। वाओ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, which of the following is not a sector to be included in 3 sector model? 3 sector model, कंजम्पशन, अच्छा पहले आ जाएगा हाउस होल्ड, फिर आएगा बिजनेस यानी फर्म, फिर आ जाएगा गवर्नमेंट। तो ये होता है सी प्लस आई प्लस जी। तो सी मतलब हाउस होल्ड के लिए हो गया, आई मतलब इन्वेस्टमेंट बिजनेस यानी फर्म के लिए हो गया, जी मतलब गवर्नमेंट के लिए हो गया। तो कौन सा ऐसा सेक्टर है जो 3 सेक्टर में इंक्लूड नहीं है? इट इज सो इजी सर, इट इज सो इजी सर, इट इज नथिंग बट फॉरेन सेक्टर। नथिंग बट विच सेक्टर? फॉरेन सेक्टर। यस, 28 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नाउ under Keynesian theory of national income determinants, under Keynesian theory of national income determinants, which of the following term is given to the demand for money? Demand for money, चैप्टर नंबर 8, डिमांड फॉर मनी। हम उसको रिप्रेजेंट कुछ इस तरह से करते हैं, हम उसको एमडी भी लिख सकते हैं, डिमांड फॉर मनी। उस थियरी का नाम पूछा उन्होंने, केनीजियन थियरी। सर केनीजियन थियरी का दूसरा नाम या एक्चुअल नाम एक ही है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी। कौन सा थियरी? लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी। यस, सो डिमांड फॉर मनी में जो जेम केन्स, लॉर्ड जेम केन्स 1936, उन्होंने जो थियरी दी है उसको टर्म क्या किया है, टर्म उसका नाम क्या है? लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी। कौन सा थियरी? लिक्विडिटी। एंड डोंट गेट कंफ्यूज विथ एग्रीगेट डिमांड। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी जेम केन्स का ही था, बट इट वाज नॉट रिलेटेड टू डिमांड फॉर मनी, है ना। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। नाउ अंडर द कीनीजियन थियरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, the assumption is that consumption increases as increase in the disposable income. हाँ सही है, but the increase in the consumption will be dash in increase in the disposable income. Income बढ़ेगा, consumption भी बढ़ेगा. Income rises, consumption also rises, but consumption rises less than the income. Consumption rises less than the income. ठीक है, आप इसको assumption बोलो, रूल बोलो, ह्यूमन टेंडेंसी बोलो, हम यही पढ़ते हैं कि इनकम बढ़ेगी, इनकम के साथ कंजम्पशन भी बढ़ेगा, लेकिन कंजम्पशन जो है वो इनकम के मुकाबले लेसर प्रोपोर्शन में क्या होगा? बढ़ेगा। दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन कंजम्पशन में आने वाला जो चेंज है वो सर इनकम में आने वाले चेंज से कम होगा, यानी इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन और लेसर देन द इंक्रीज इन द इनकम। योर आंसर इज ऑप्शन डी। तो 30th का आंसर आएगा ऑप्शन डी। Next, अरे बाप रे, what an easy concept. Which of the following true in respect of MPC and MPS as per the Keynesian theory of national income? It is so simple, sir. It is very very simple. It is nothing but MPC plus MPS is equals to 1. दोनों का रिलेशन MPC plus MPS is equals to 1. 31st क्वेश्चन का आंसर आएगा बी. In preparation of the state income estimate,
certain activities like railways, banking, insurance, that यहाँ ना there is a catch, across the state boundaries. सिर्फ रेलवेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस ये पढ़ के सर आप सीधा सीधा टर्शरी सेक्टर जंप मत कर लेना. सवाल को पहले समझना. इन द प्रिपरेशन ऑफ स्टेट इनकम एस्टिमेट, स्टेट इनकम, हर एक स्टेट इनकम एस्टिमेट लाइक रेलवेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, दैट कट across the state boundaries and thus their economic contribution assigned to more than one state is known as supra-regional sectors of the economy, not tertiary sector. Across the state boundaries, across the state boundary is the catch. Supra-regional sector. Next. This is the easy one. Which of the following statement is true in respect of social cost? So they've asked us just a simple thing. What is social cost? Social cost is nothing but private cost प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट. एक्सटर्नलिटी, एक्सटर्नलिटी से मार्केट फेलियर भी हो रहा है, ठीक है. सोशल कॉस्ट इज द कॉस्ट विच इज बेयर्ड बाय द सोसाइटी एट लार्ज. प्राइवेट कॉस्ट इज द कॉस्ट इनकर्ड बाय एंटरप्रेन्योर टू प्रोड्यूस द गुड्स और मैन्युफैक्चर द गुड्स और सर्विस. Which of the following is not a characteristics of public goods? Okay, public goods. See, public goods are like, it is non-excludable, non-rivalable, indivisible, more vulnerable to externality. So public goods are non-excludable. और उन्होंने हमें पूछा है not. उन्होंने हमें पूछा है not. Yes, तो public goods जो है वो non-excludable होता है. It is not exclusively for someone. सबके लिए होता है. Collective consumption of goods. Public goods is collective consumption of goods. Private goods are selective consumption of goods. So your answer is excludable. 34 का आंसर आएगा D. Your answer is option D. What does the term lemon means in Lemon Problems by George Akerlof in relation to used car market? Causes of externality, incomplete information, asymmetric information, used car market given by George Akerlof, good quality car, bad quality car. So now question समझते हैं. The term lemon means, अभी lemon problem मतलब क्या सर? Here lemon problem simply means poor quality car ना. उन्होंने इसको यही तो रेफर किया था, poor quality car. तो सर अब यहाँ ऐसा है कि both poor and good quality used car, only good, देखो only good quality car तो नहीं है, average quality used car और scrapped used car. अब these terms are not defined here, एकदम प्रॉपर तरीके से यहाँ डिफाइन नहीं किया है उन्होंने. मतलब अनदर क्वेश्चन जिसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है, इसका सर आंसर हमें एक्चुअली मिल ही नहीं रहा. अब व्हाट डू यू मीन बाय लेमन प्रॉब्लम्स? लेमन प्रॉब्लम्स आर पुअर क्वालिटी कार, जिसके वजह से उस मार्केट में गुड क्वालिटी कार सेल नहीं हो पा रहा है, और जो गुड क्वालिटी कार के सेलर्स हैं वो भी मार्केट छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि जो पुअर क्वालिटी कार है उसको सेल करके ज्यादा प्राइस मिल रहा है, गुड क्वालिटी कार तो चला गया. तो सर हियर it could be B also, it could be C also, it could be D also. मतलब डिफाइन ही नहीं किया है. अगेन अब ICAI बताएगा इसका आंसर क्या आएगा. यस, इसका कोई डेफिनेट, क्योंकि दे हैव नॉट स्पेसिफिकली मेंशन पुअर क्वालिटी कार. अगर यहाँ सिर्फ ऑप्शन बी में होता पुअर क्वालिटी यूज्ड कार तो हम ऑप्शन बी करते, बट बोथ पुअर एंड गुड क्वालिटी. अब लेमन प्रॉब्लम्स, मार्केट इज फ्लडेड विथ लेमन्स, ऐसा लिखा है गुड यूज्ड कार मॉडल में, यूज्ड कार वाले में. तो सर इसका भी ICAI जो आंसर की भेजता है, ICAI जो आंसर की जाएगा उसी के बेसिस पे आएगा. अब या तो वो ऑप्शन सी हो सकता है या तो वो ऑप्शन डी हो सकता है. ऊपर वाले क्वेश्चन में सर इट वाज अ प्रिंटिंग मिस्टेक, साइन का प्रॉब्लम था, प्लस माइनस. यहाँ आंसर डेफिनेट है नहीं हमारे पास. तो अभी ICAI जब अपना सोल्यूशन देता है या ICAI जब आंसर की भेजेगा तो उसमें हम लोग कोशिश करेंगे वहां से फाइंड आउट करने की. मतलब ये रह गया बीच में कहीं. Which of the following is one of the key function? पहले तो आपको फोकस करना है की फंक्शन ऑफ फिस्कल पॉलिसी aimed as eliminating the macroeconomic fluctuation arising from suboptimal allocation of resources. Macroeconomic fluctuation. So when it comes to macroeconomic, it is nothing but stabilization function. Price stability. It is nothing but what? Price stability. Key function.
देयर आर 3 मेन फंक्शंस, एलोकेशन जिसका मेन एम होता है क्या कहते हैं एफिशिएंसी, देन कम्स रीडिस्ट्रीब्यूशन, उसका एम होता है फेयरनेस, इगैलिटेरियन, इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल, स्टेबिलाइजेशन इज ऑल अबाउट प्राइस स्टेबिलिटी. तो की फंक्शन ऑफ फिस्कल पॉलिसी एम्ड एट एलिमिनेटिंग द फ्लक्चुएशन अराइजिंग फ्रॉम सब ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस. एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस सब ऑप्टिमल हुए तब उसको स्टेबल करना पड़ेगा, स्टेबिलाइजेशन. Article 112 of Indian Constitution. Article 112 of Indian Constitution provides that in respect of every financial year, the president shall cause to be laid before both houses of parliament. It's a statement of estimated reception expenditure of government of India for this year. Guys, don't get confused, this is not budget. सर ये बजट नहीं है, इसका आंसर आएगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. आंसर क्या आएगा? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. Which of the following information regarding the reception expenditure of the government not presented in budget document? Not presented in budget document. सर पहले तो not presented in budget document. सर ऐसा कौन सा इंफॉर्मेशन है जो बजट डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट नहीं होता है? रिवाइज्ड एस्टीमेट ऑफ इंश्योरिंग फाइनेंशियल ईयर. रिवाइज्ड एस्टीमेट ऑफ इंश्योरिंग फाइनेंशियल ईयर. एक बात बता सकते हैं सर, रिवाइज्ड एस्टीमेट्स ऑफ इंश्योरिंग फाइनेंशियल ईयर होता ही नहीं है, रियलिटी में भी मतलब होता ही नहीं. ठीक है, तो अगर है ही नहीं तो बजट में कहां से प्रेजेंट? Which of the following is the nodal department for overseeing the public financial management system in central government? Public financial management system in central government. कौन है जो नोडल डिपार्टमेंट है जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को देखता है या संभालता है? नोडल. It is Department of Expenditure under Finance Ministry. Department of Expenditure under Finance Ministry. Now, mutual fund investments are subject to market risk. Please read the offer document carefully before investing. ये क्या है? This statutory disclaimer कि वो बता रहे हैं कि भाई आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो सोच समझ के स्टडी करके करिए. गवर्नमेंट इज इंटरवीइंग टू correct the market failure related to incomplete information. तो ये जो डिस्क्लेमर हम देखते हैं टीवी में या डिस्क्लेमर जब हम सुनते हैं, गवर्नमेंट इंटरवेन कर रहा है कि इंफॉर्मेशन फेलियर ना हो. उन्होंने बता दिया कि भाई इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. सो आप जब भी अपना पैसा किसी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके फंड मैनेजर के कहने पे, फंड मैनेजर तो आपको बता ही रहा है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, बट फिर आप भी सर पूरी तरीके से पहले स्टडी कीजिए. किसी के सिर्फ कहने से ही उसमें पैसा इन्वेस्ट ना कीजिए. ऐसा गवर्नमेंट ने डिस्क्लेमर दे दिया है. फिर आगे जाके कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो आप सेबी को या किसी और को जिम्मेदार ना ठहराएं, बिकॉज इट इज अ गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट विच फेलियर? इंफॉर्मेशन फेलियर. नेक्स्ट 41. Which of the following is not true regarding fiscal policy of the government? Not true पूछा है, not true. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. ठीक है, ध्यान देना है रिगार्डिंग फिस्कल पॉलिसी. ठीक है, अब ध्यान देना अच्छे से. पहले तो इट इज अ डेलिब्रेट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, ये तो राइट है. एन इकोनॉमी प्रोड्यूसिंग फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट रिक्वायर गवर्नमेंट एक्शन इन द फॉर्म ऑफ फिस्कल पॉलिसी. हाँ, अगर इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट में है तो क्यों? फुल एम्प्लॉयमेंट को हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं. वेयर माय एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई. अगर इकोनॉमी सही है, स्टेबलाइज है, तो उसमें गवर्नमेंट के एक्शन की जरूरत नहीं है. इट इज स्टेबलाइज्ड, तो ट्रू है. टैक्सेशन पॉलिसी इज अ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी. टैक्सेशन पॉलिसी इज अ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी. हाँ जी, फिस्कल पॉलिसी इज ऑल अबाउट टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट. एंड यस, fiscal policy is supply side policy. No.
सर फिस्कल पॉलिसी इज एक्चुअली डिमांड साइड पॉलिसी, तो नॉट ट्रू पूछा है ना, सो सर ये नॉट ट्रू आ जाएगा कि सर फिस्कल पॉलिसी तो एक्चुअली डिमांड साइड पॉलिसी होता है। कौन सा होता है? डिमांड साइड पॉलिसी। What is the term Y represent in the expression of demand for money is KPY. P is average price. MD is demand for money. K is proportion of our total income hold for cash balance is cash balance approach है ये सर। MD is equals to KPY. So ये जो Y है Y is all about what? Real national income. Y is all about what? Real national income. Banks availing marginal standing facility rate can use maximum of how much percentage of SLR? Sir, 1% of SLR. This is MSF, marginal standing facility. ये इसे lender of last resort भी कहते हैं। डूबके को तिनके का सहारा, lender of last resort भी कहते हैं। क्या कहते हैं? lender of last resort. तीसरा आंसर is very simple. It is 1% of SLR. It is 1% of SLR. Now, calculation of currency with the public from the following data. Notes in circulation 2,59,121 lakhs. Coins in circulation 23,345 lakhs. Cash on hand with bank and coin on hand with bank. तो सर जब हम currency with public calculate करते हैं, ये हम ऐड करेंगे, ये हम ऐड करेंगे और ये दो चीजें माइनस हो जाएंगी। Cash on hand with bank, it is with bank, so it is not in the hand of people to do transaction. Coin on hand with bank, cash and coin, again it is with bank, not in the hand of people, so that they can't do transaction with this. तो सर जब हम वो दोनों को प्लस करेंगे, यानी 259,121 प्लस 23,345 ये दोनों को प्लस करेंगे, बाद में ये दो चीजों को हम माइनस करेंगे। इग्नोर नहीं बेटा, माइनस करना होगा, माइनस। आपका आंसर आएगा 262,548। क्या आंसर आएगा? 262,548। जी हाँ, ऑप्शन बी। ड्यूरिंग द बजट, फिर से बता देता हूं, ये दोनों चीजें ऐड होगी। क्यों? कैश ऑन हैंड विथ बैंक एंड कॉइन ऑन हैंड विथ बैंक हम माइनस करते हैं कैलकुलेशन ऑफ करेंसी विद द पब्लिक, बिकॉज इट इज विथ बैंक। It is with bank. बैंक के पास है। People don't have that money in their hand to do transaction in the economy. उनके हाथ में है ही नहीं पैसा, बैंक के पास पैसा है ना सर? During the budget proceedings, the speaker of Lok Sabha prescribed the time is over and put all the outstanding demand for grants, whether discussed or not, to vote of house. This process is called what? अरे it was so simple sir. This process is called guillotine. This process is called what? Guillotine. अभी टाइम खत्म होने आया है, अब डिस्कशन का टाइम नहीं है। सीधा जो भी डिमांड फॉर ग्रांट्स फॉर स्टेट्स यूटीज हैं उसको क्या कर दो? वोटिंग पे डाल दो। उसको गलेटिन कहते हैं। नाउ TDDD रेशियो, वाओ, विच रेशियो? TDDD रेशियो, दैट इज टाइम डिपॉजिट टू डिमांड डिपॉजिट। सवाल समझते क्या लिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ। What is likely to impact an increase in the time deposit to demand deposit ratio on banking system and monetary expansion? TDDD रेशियो का सर बैंकिंग सिस्टम और मनी सप्लाई यानी मॉनेटरी एक्सपेंशन पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है? It leads to higher availability of free reserves and consequent enlargement of the volume of multiple deposit expansion and monetary expansion. It reduces the availability of free reserves, thereby restricting the process of monetary expansion. नहीं, it has no impact on, देखो impact तो आएगा, तो ऐसा कोई नहीं है कि impact आएगा ही नहीं, interchangeable नहीं, तो ये तो है ही नहीं सर। It directly reduces the money supply. Time deposit are not considered part of money supply. नहीं सर, जब हम broad money कैलकुलेट करते हैं तो टाइम डिपॉजिट को हम कंसीडर करते हैं सर। सर योर आंसर फॉर दिस दैट इट लीड्स टू हायर अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री रिजर्व्स एंड कंसिक्वेंट एनलार्जमेंट ऑफ मल्टीपल डिपॉजिट एक्सपेंशन एंड मॉनेटरी एक्सपेंशन। 47, ये देखो आ गया ब्रॉड मनी। ब्रॉड मनी सर, ब्रॉड मनी अभी थोड़ी देर पहले जस्ट मैंने बताया। सो ब्रॉड मनी include currency deposit with agreed maturity up to dash years, deposit redeemable up to dash months, and repurchase agreement, money market funds, shares, units, and debt security up to dash years. Sir, broad money includes currency deposit with agreed maturity up to 2 years,
deposit redeemable notice up to 3 months, and money market funds, units, shares and debt security up to 2 years. So sir, 2 3 2, yes, this is the thing. Your answer is option D. तो 47 का आंसर आएगा ऑप्शन डी. Wow, which of the following is not included in M1? Second working group, measurement of money supply, 1977 M1. तो M1 is all about what? सर M1 जो है वो नैरो मनी है, ब्रॉड मनी नहीं है. तो उसके अंदर पहले आएगा करेंसी विथ द पब्लिक, उसके बाद आएगा डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक प्लस अदर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई. तो क्या नहीं आएगा सर? टर्म डिपॉजिट विथ बैंक्स नहीं आएगा, दैट इज टाइम डिपॉजिट विथ बैंक नहीं आएगा. अच्छा, M1 में जब हम ये ऐड करेंगे ना टाइम डिपॉजिट, तो M3 मिल जाता है. लिक्विडिटी ट्रैप, व्हाट इज लिक्विडिटी ट्रैप? इंटरेस्ट रेट्स आर जीरो एंड पीपल प्रिफर टू होल्डिंग कैश ओवर बॉन्ड्स. सर लिक्विडिटी ट्रैप कुछ इस तरह से है कि सर जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते जाएगा, लोग इन्वेस्टमेंट यानी कि सर पीपल प्रिफर बॉन्ड्स ओवर कैश. लेकिन इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज जीरो, people prefer to hold more money in their hand rather than investing in the bond. तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं सर, ये जो एरिया आपको दिख रहा है सर, इसको फिर मैं लिक्विडिटी ट्रैप कहूंगा. क्या कहूंगा? लिक्विडिटी ट्रैप. इट इज अ सिचुएशन वेयर इंटरेस्ट रेट्स आर जीरो और नियर द जीरो, पीपल प्रिफर टू होल्ड कैश ओवर बॉन्ड्स. वो बोल रहे हैं सर हम हमारे हाथ में लिक्विडिटी रखते हैं, तो they are not investing or they are not giving that money. उसको expansion होने का टाइम नहीं मिल रहा है, multiply होने का टाइम नहीं मिल रहा है. That is liquidity trap. Which of the following is a not quantitative tool of monetary policy? There are two instruments. One is qualitative, one is quantitative. Quantitative में changes आया मतलब पूरी कायनात, पूरी इकोनॉमी में चेंज आएगा. Qualitative में चेंज आया मतलब किसी एक सेक्टर में चेंज आएगा. तो CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, फिर से क्या, CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये तीनों ही है ना सर क्वांटिटेटिव है, और हमें पूछा है नॉट अ क्वांटिटेटिव. तो सर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इज एक्चुअली क्वालिटेटिव. लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इज एक्चुअली क्वालिटेटिव. Which of the following expression is true? Which of the following expression is true? Question number 51. पहला ऑप्शन ही राइट है अगर सही से पढ़ा होगा. रिवर्स रेपो रेट इज इक्वल्स टू रेपो रेट -1. रिवर्स रेपो रेट इज इक्वल्स टू रेपो रेट -1. देन कम्स 52. थियरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट. थियरी ऑफ विच कॉस्ट? कंपैरेटिव कॉस्ट. विच स्टेटमेंट इज ट्रू? विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू? इज और आर, दो में से एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. It is based on the money cost which is more realistic. नहीं sir, it is based on opportunity cost, not on the money cost. First of all, comparative cost advantage. सर ये किसने दिया था comparative cost advantage? डेविड अंकल ने दिया था, डेविड रिकार्डो. comparative cost advantage theory was given by David Ricardo 1817, the political economy. So पहला वाला तो सर false है. इट इज पॉजिटिव इन नेचर. नहीं सर, पॉजिटिव भी नहीं है. इट इज नॉर्मेटिव इन नेचर. हाँ जी राइट है. डू नॉट टेक इनटू द अकाउंट ऑफ द फैक्टर प्राइस डिफरेंस. हाँ, फैक्टर प्राइस डिफरेंस नहीं है, क्योंकि लेबर थियरी को कंसीडर करें तो जो लेबर होता है वो विद इन द कंट्री मोबाइल है, बट आउटसाइड द कंट्री इमोबाइल है. तो हम प्राइस डिफरेंस, फैक्टर प्राइस डिफरेंस को यहाँ कंसीडर या डजंट टेक इनटू अकाउंट. तो सर हियर 3 and 4 आर करेक्ट. हियर 3 and 4 आर करेक्ट. ध्यान देना अच्छे से. सो 52 का आंसर आएगा बी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 डिटर्मिनेंट ऑफ फ्रीडमैन्स डिमांड फॉर मनी? मिल्टन फ्रीडमैन, पोस्ट किनीशियन. सो नॉट वन ऑफ द 4 डिटर्मिनेंट्स, नॉट वन ऑफ द 4 डिटर्मिनेंट्स. सो सर नॉमिनल डिमांड फॉर मनी इज अ फंक्शन ऑफ टोटल वेल्थ. हाँ, it is positive related to price. More is the price, more is the demand for money. Nominal demand for money falls if the opportunity cost of holding the money declines. Opportunity cost for holding the money decline. तो demand for money falls. नहीं, आप समझे नहीं. अगर opportunity cost कम है तो मैं अपने हाथ में ही रखूंगा.
डिमांड फॉर मनी मेरा ही होगा, उल्टा डिमांड फॉर मनी बढ़ेगा, तो सर ये जो है ये या कुछ गड़बड़ है। सो ये वो डिटर्मिनेंट नहीं है। 53 का आंसर आएगा सी। व्हाट इज द एड वैलोरम टैरिफ? एड वैलोरम सर इट इज वेरी सिंपल। एड वैलोरम टैरिफ इज द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी पर फिजिकल यूनिट, नहीं that is तो specific. Fix the time period for tariff application for per calendar year, no. The duty levied as a fixed percentage of the value, हाँ जी ad valorem fixed percentage, sir answer is C. The duty levied as a fixed percentage of the total value traded in the commodity. Tariff is set so high that no import can enter is known as, जानबूझ के उस देश की सरकार ने हाई टैरिफ लगा दिया। सो जो इंपोर्टर है, इंपोर्टर वो उस पर्टिकुलर कमोडिटी को इंपोर्ट ही ना करे या कर, मतलब इस तरीके से टैरिफ, प्रोहिबिटिव टैरिफ कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? प्रोहिबिटिव टैरिफ। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस कंट्री इज अ पार्ट ऑफ यूएसएमसीए अग्रीमेंट? विच ऑफ दिस कंट्री इज अ पार्ट ऑफ यूएसएमसीए अग्रीमेंट? उस कंट्री का नाम है मेक्सिको। क्या नाम है? मेक्सिको। Which of the following or which of one of these is the main reason why GATE lost its relevance by 1980? We all know कि WTO जो बना सर वो किसको रिप्लेस करके बना? गेट को, जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो जब ये वर्ल्ड ट्रेड को स्मूथ करना, फ्री करने की बारी आ रही थी, तो गेट को एक नोडल एजेंसी बनाया गया, एपेक्स इंस्टीट्यूशन बनाया गया। लेकिन लेटर ऑन जैसे जैसे इकोनॉमी आगे बढ़ती गई, दुनिया आगे बढ़ती गई, तो गेट अपना रिलेवेंस इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम खोता गया। मतलब क्यों? क्योंकि दो देशों का जितना वॉल्यूम बढ़ा उतना ट्रांजैक्शन बढ़ा, तो बड़े वॉल्यूम और बड़े ट्रांजैक्शन का धंधा जो है वो गेट सही तरीके से मैनेज या उसको सही तरीके से वो रेगुलेट नहीं कर पा रहा था, या रेगुलेट नहीं करता है बट फ्री फ्लो नहीं हो पा रहा था। दो देशों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो कोई डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी नहीं थी सर। तो इसीलिए There were inadequacies in institutional structure and dispute settlement system. फिर ये dispute settlement system WTO ने बनाया, और गेट को पूरी तरीके से किसने रिप्लेस कर दिया? WTO ने। The value of a product or service is enhanced as the number of individual using it is increases. What effect it is? The product or service का वैल्यू पे बात हुई है सर, प्राइस पे नहीं। आप बात समझिए, वैल्यू। This not the question for chapter 2 sir, Veblen, income, bandwagon, snob, नहीं। This is from the new trade theory, Paul Krugman। न्यू ट्रेड थियरी से ये सवाल है कि वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस इज एनहांस्ड एज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल यूजिंग इट इंक्रीज। द मोर पीपल विल इंक्रीज, द मोर वैल्यू ऑफ दैट गुड्स, बैंडवैगन इफेक्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सर नेटवर्क इफेक्ट, नेटवर्क इफेक्ट। पॉल क्रुगमैन, नोबेल प्राइज विनर इन 2008 है ना, न्यू ट्रेड थियरी लाया था, फ्री ट्रेड को प्रमोट करने वाला बंदा। अंकल कहते हैं कि सर इट इज नेटवर्क इफेक्ट। फ्री ट्रेड दो तरीके से हो सकता है, एक डिमांड साइड, एक सप्लाई साइड। सप्लाई साइड में आएगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल, डिमांड साइड में आएगा सर नेटवर्क इफेक्ट। सो आंसर इज बैंड वैगन इफेक्ट। सो आंसर इज, चलिए मैच द फॉलोइंग। ओहो चलो समझते हैं। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट एंड इज इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग, सर FDI। ओ यानी ए का आ जाएगा 2। तो अब हम देखेंगे ए का 2 कहाँ है, तो सर इसको एलिमिनेट कर दो, इसको एलिमिनेट कर दो। स्पेक्यूलेटिव इन नेचर, सर FPI जो होता है वो स्पेक्यूलेटिव इन नेचर होता है। तो सर बी का आ जाएगा 1, बी का आ जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट, हेल्प्स डेवलपिंग कंट्रीज बेनिफिट फुल्ली फ्रॉम द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। हेल्प्स डेवलपिंग कंट्री बेनिफिट फुल्ली फ्रॉम ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। तो WTO जो है वो पूरे वर्ल्ड में जो ग्लोबल ट्रेड है उसको फ्री, फेयरली, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, प्रिडिक्टेबली मैनेज करने की कोशिश करता है। दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक डू नॉट पार्टिसिपेट इन द मार्केट फॉर एक्सचेंज रेट। इट इज कॉल्ड फ्री एक्सचेंज रेट या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो ए का 2 है, बी का 1 है, सी का 4 है, डी का 3 है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर नहीं बट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उसके बाद आया 60th क्वेश्चन। एंड इन्वेस्टमेंट in which one investor establish a business activity in foreign country, which investor
different from the investor's main business activity but in the some way supplements to its major activity. ठीक है, अभी ध्यान से समझना, अच्छे से समझना. some way supplements its major activity. या तो ये फॉरवर्ड हो सकता है या तो ये बैकवर्ड हो सकता है. ठीक है, ये तो ये फॉरवर्ड हो सकता है या तो ये सप्लीमेंट बोला, या तो रॉ मटेरियल या तो कोई एडेड सर्विसेज. सर इट इज कॉल्ड वर्टिकल एफडीआई या वर्टिकल इन्वेस्टमेंट. मतलब सपोज मैकडॉनल्ड इंडिया में आया, तो मैकडॉनल्ड जब इंडिया में आया पैसा लेके, तो उसने पहले यहाँ पे फार्म्स खरीदे, पोल्ट्री फार्मिंग फार्म्स खरीदा ताकि उसको पोटैटोज, चिकन ये सब मिले. ठीक है, वो उसका रॉ मटेरियल है, उसे बेचने के लिए वो सारे रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो वर्टिकल हुआ. और कौन सा वर्टिकल हुआ सर? बैकवर्ड रॉ मटेरियल मिलेगा, इनपुट्स मिलेगा. समझ में आया? नेक्स्ट, द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक फॉर दोहा डेवलपमेंट एजेंडा. सर इट वाज एग्रीकल्चर ट्रेड. दोहा डेवलपमेंट, आज भी सर इसके ऊपर बात होती है, आज भी इसके ऊपर कोई ऐसा कॉन्क्रीट सोल्यूशन निकला नहीं है. नेक्स्ट, which of the following are fiscal reforms? Which of the following are fiscal reforms? Ensuring better tax compliances, reinvestment of the funds in more profitable option, encouraging private sector participants and trust on curbing government expenditure. तो fiscal reform मतलब सर it's all about fiscal policy. तो सर री इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स इन मोर प्रॉफिटेबल ऑप्शन, नहीं, ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड फिस्कल पॉलिसी इज नॉट. हाँ, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन चाहिए, जी हाँ चाहिए सर, क्योंकि पूरा मिक्स्ड इकोनॉमी है. बेटर टैक्स कंप्लायंसेस चाहिए, हाँ जी बिल्कुल चाहिए. गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को हम कम करने की कोशिश करें ताकि सर लोगों की विलिंगनेस टू वर्क भी बढ़े. अदरवाइज पीपल आर डिपेंडेंट ओनली ऑन द गवर्नमेंट, तो मे बी सर वो लोग अपनी विलिंगनेस टू वर्क, विलिंगनेस टू एबिलिटी टू वर्क खो दे. तो आंसर इज ओनली 1, 3 एंड 4 इज राइट. 2 तो रॉन्ग है सर, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी. 62 का आंसर इज ऑप्शन सी. उसके बाद आया 63rd. विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्री ब्रिटिश इंडियन इकोनॉमी. मतलब इसमें से कौन सा ऐसा सिचुएशन है जो सबसे सही तरीके से बताता है प्री ब्रिटिश. Dependent on import for goods, focus on industrial production dominated by foreign trade. No sir, self-sufficient villages and cities which were center of commerce. हाँ जी, रूरल इकोनॉमी भी होती थी, अर्बन इकोनॉमी भी होती थी प्री ब्रिटिश एरा. अर्बन इकोनॉमी मोर ऑफ कॉमर्स, रूरल इकोनॉमी इज मोर ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी. एग्रीकल्चर ट्रेड ज्यादा सर, कॉमर्स भी होता था अर्बन एरिया में. ठीक है, आंसर इज बी, ऑप्शन बी. द ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स इंक्लूड, trade policy inclusion of licensing, restriction of import, removal of licensing procedure for import, complication of tariff, inclusion of quantitative restrictions. अरे लाइसेंसिंग लाएंगे तो रिफॉर्म्स कहाँ से, वो तो था ही. हाँ, लाइसेंसिंग को हटाओ और इंपोर्ट का प्रोसीजर और स्मूथ बनाओ. कॉम्प्लिकेशन ऑफ टैरिफ, ये रिफॉर्म्स कहाँ हुए. इंक्लूजन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, नहीं, रिस्ट्रिक्शंस तो कम करना है, फ्री ट्रेड को प्रमोट करना है. तो सर आंसर इज रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट. हाँ जी. विच इनिशिएटिव बाय नीति आयोग एम्स टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल. अनदर क्वेश्चन. अभी देखो यहाँ मैक्सिमम लोगों ने इधर 2 ऑप्शंस में गड़बड़ है. गड़बड़ नहीं है, हमने की है आंसर को गोला बनाते वक्त. अब इधर ई अमृत भी बोला जा रहा है और शून्य कैंपेन भी बोला जा रहा है. अब आपको समझना होगा, to promote electric vehicles, नीति आयोग aims to promote electric vehicle. अब ये जो शून्य कैंपेन है ना, शून्य कैंपेन, ये शून्य कैंपेन जो है इससे AQI इंप्रूव होने वाला है. व्हाट इज AQI? एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होती है ना देश की. कैसे? तो बोलेंगे कि सर ज्यादा से ज्यादा ईवीज बाय करो, या ज्यादा से ज्यादा ईवीज को क्या करेंगे, ऐसे उसका ज्यादा प्रमोशन करके लोगों को, क्या डिप्लॉयमेंट कहते हैं उसको, डिप्लॉयमेंट. अब ई अमृत जो है, ई अमृत, इट इज अ वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट ईवीज. इट इज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द ईवीज. तो ई अमृत जो एक पोर्टल है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन बता रहा है उन लोगों को जिनको ईवीज के बारे में कुछ पता ही नहीं है. बट ये जो शून्य कैंपेन है ये एयर क्वालिटी इंप्रूव करने की बात कर रहा है ना सर. तो शून्य कैंपेन इज टू प्रमोट ईवी बाय डिप्लॉइंग द ईवीज इनटू द मार्केट. So answer is Shunya campaign, not E-Amrit. E-Amrit will give you only information about EVs.
कि ईवी इसको कहते हैं, इस तरह की बैटरी है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे बनता है, क्या है एफिशिएंसी, क्या है प्रोस, क्या है कॉन्स, क्या है। 60, तो आंसर ए नहीं है, ई अमृत इज नॉट द आंसर, शून्य कैंपेन इज द आंसर। 66, एन अप्रिसिएशन ऑफ करेंसी और स्ट्रॉन्ग करेंसी मेक्स डोमेस्टिक करेंसी मोर वैल्यूएबल। ऑब्वियसली सपोज $1, एक यूएस डॉलर अगर पहले 85 का है सर, आज वो हो गया $1 इज इक्वल्स टू ₹84.50, तो 50 पैसे से मेरी डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएट हुई। तो अब मैं पहले से ज्यादा फॉरेन करेंसी बाय कर सकता सर, ओनली 50 पैसा। हाँ, डेली ट्रेड अगर आप देखोगे फॉरेक्स में तो क्या ऐसा है, 5-5 रुपए 10-10 रुपए चेंज नहीं हो रहा है, इट इज इन पैसेज ओनली, 10 पैसे 20 पैसे 30 पैसे 40 पैसे। तो पहले जो $85 में मिल रहा था अब $84.50 में मिल रहा है। तो मेरी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो अप्रिशिएट हुई 0.50 पैसे से, और क्वेश्चन इज ऑल अबाउट डोमेस्टिक करेंसी। सो डोमेस्टिक करेंसी मोर वैल्यूएबल, एंड अब मैं ज्यादा फॉरेन करेंसी बाय कर पाऊंगा। So the option is valuable and larger. What percentage of India's population depends on agriculture for livelihood as per latest estimate? Listen to me very carefully. What percentage of India's population depends on agriculture for livelihood as per the latest estimates? GDP में कितना कंट्रीब्यूट किया है वो नहीं पूछा है, नहीं तो आप और मैं ऐसे एग्रीकल्चर का शेयर एकदम कम होता है ऐसे तुक्का मार के 18% लिख देंगे, नहीं नहीं। उन्होंने पूछा है कि टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है फॉर देयर लाइवलीहुड, रोजी रोटी। सर आंसर इज 47%। इट इज सी। 18% मत कीजिएगा, जीडीपी का कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि सर एग्रीकल्चर का तो शेयर अभी डे बाय डे कम होते जा रहा है। इट इज नॉट द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी, it is number of people dependent on agriculture for their livelihood. Which government schemes focus on providing financial support to farmers suffering crop loss or damages? सर फसल बीमा योजना, बहुत सिंपल चीज है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, दैट इज क्रॉप इंश्योरेंस, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, नाम है। Which regime replaced the Foreign Investment Promotional Board? FDI FPI, ठीक है, तो उसका एक जो बोर्ड था अब उसको रिप्लेस किया है किसने? FIF पोर्टल ने। किसने रिप्लेस किया है? FIF पोर्टल। नेक्स्ट, व्हाट वाज द व्हाट वाज पूछा है, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन 2020 एज पर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? 2022 में हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंक 40 था, करंट रैंक जो है वो 39 है, इंप्रूव हुआ है। करंट रैंक इज 39, तो 7, बट उन्होंने करंट नहीं पूछा है, उन्होंने 22 का पूछा है। कौन सा पूछा है? 22 एस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, आंसर इज 40। विच पॉलिसी रिप्लेस्ड मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फॉर इंडिया स्कीम्स इन 2021? रेमिशन ऑफ ड्यूटीज, रोड टैप नाम का पॉलिसी है सर, रोड टैप। The early liberalization and reform started in India. Early liberalization and reforms. Early पूछा, early 1990s तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। early liberalization सर it is 1980 शुरू हुआ और 90 तक 91 तक implement कर दिया। Which of the following is not correct about business economics? Not correct about business economics. Business economics helps in decision making of particular business entity. Yes, it is business economics only. तो A तो right है. Business economics has a narrow space in comparison to economics. Economics is an applied branch of business economics. हाँ, इधर कुछ गड़बड़ लग रही है सर. Business economics is a branch of economics, or you can say applied economics. Sir, answer is C. Not correct पूछा है. Business economics include the analysis of micro level issues like demand supply. हाँ, वो तो issues solve होंगे. Command economy is also known as capitalist, socialist, mixed or macro. Sir, command economics is also known as socialist economy, where all the means of production owned, managed and controlled by the central authority. Which of the following is not the merit of capitalism? Not पूछा. Not the merit of capitalism. Faster growth, हाँ. Collective ownership, हाँ, क्योंकि कैपिटलिज्म में all the means of productions are owned, managed and controlled by private enterprises. Owned, managed and controlled by private enterprise, तो collective ownership नहीं होती है.
और उनका मेन ड्राइविंग फोर्स प्रॉफिट होता है। एन इकोनॉमी एग्जिस्ट on which of the following two facts? Economy exists on which of the following two facts? इसको इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल भी कहते हैं कि सर ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड but resources are relatively scarce. Human wants are unlimited and resources are relatively scarce. 77. Microeconomic theory mainly does not deal with the following issues. अच्छा, ये क्वेश्चन बाय द वे चैप्टर 1 से है, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। कौन सी ऐसी चीज है जिसमें माइक्रो डील नहीं करता है? सर स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। Business stages of business cycle is external as well as sir it is macro. Production cost analysis micro है, demand analysis demand forecasting micro है, inventory management micro. Highly priced goods are consumed by status seeking rich people to satisfy their need. Conspicuous consumption, conspicuous necessity नहीं, conspicuous consumption. Conspicuous necessity is a different thing. Conspicuous consumption. Thorstein Veblen, Veblen effect क्या आ जाएगा? Veblen effect, conspicuous goods. An expectation that price will fall in future. Oh, तो this particular determinant is future price. Okay, तो अब इससे क्या होगा? तो फैक्टर अदर देन प्राइस है पहले। तो अगर फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है, तो सपोज अगर ये मेरी डिमांड कर्व है और कहा जा रहा है प्राइस फिलहाल कुछ नहीं, फिलहाल जो प्राइस है वो सेम है, कहा जा रहा है कि एक्सपेक्टेशन दैट प्राइस विल फॉल इन फ्यूचर। तो प्राइस कब कम होने वाला है? फ्यूचर में। तो कंज्यूमर अभी बाय करेगा कि फ्यूचर में? तो बोले फ्यूचर में बाय करेगा। अभी क्यों बाय करेगा? वो अपनी जो परचेसिंग पावर है अपने हाथ में रखेगा, अपने कंजम्पशन को पोस्टपोन भी कर सकता है वो। तो सर आज की प्राइस में कोई चेंज है क्या? नहीं सर, करंट प्राइस में कोई चेंज नहीं है, और एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर प्राइस क्या हो सकता है? चेंज, और वो भी फ्यूचर प्राइस कम हो सकता है। तो इन दिस केस सर माय डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू लेफ्ट, my demand curve will shift to left. So sir, leftward shift of demand curve, this is change in the factor other than price. सर आपका आंसर आ जाएगा 79 का डी। लेट्स मूव, आगे जाते हैं। A consumer buys 100 unit of goods at the price 6 rupees per unit. Suppose price elasticity of demand is -3. What will be the at what price will he buy 80 units? Okay, तो they have asked us for a new price. तो अभी देखो, पहले हमें ना इसको, एक है प्राइस एक है क्वांटिटी, इसको हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सर जब प्राइस 6 रुपीज था, प्राइस जो है वो क्या था? 6 रुपीज, तो 100 यूनिट्स बाय किए, ठीक है। तो 80 यूनिट्स, क्या 80 यूनिट्स जब ये बाय कर रहा है तो प्राइस क्या होगा? एट व्हाट प्राइस विल ही बाय 80 यूनिट्स? एट व्हाट प्राइस ही विल बाय 80 यूनिट्स? तो अब इसको हमारे पास देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी दे दिया गया है, दैट इज -3। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी क्या दे दिया है? दैट इज -3। तो अभी हम क्या कर सकते हैं सर? हम इसको दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपली अगर हम फॉर्मूला लगा दें कि सर परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, उससे भी हम कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। या हमें यहाँ पे सिंपली न्यू फॉर्मूला यानी न्यू सॉरी एट व्हाट प्राइस ही विल बाय 80 यूनिट्स। यस, सो 80th क्वेश्चन पे हम है प्राइस इज 6, क्वांटिटी इज 100, एट 80 यूनिट एट विच प्राइस, वो प्राइस क्या होगा जिस पे 80 यूनिट्स बाय होगी। तो अब हमारे पास इसके दो तरीके, या तो प्राइस क्वांटिटी इसको लेके आप जाइए, अदरवाइज डायरेक्टली हम जा सकते हैं चेंज इन क्वांटिटी और परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें दिया हुआ है, दैट इज -3। अब चेंज इन क्वांटिटी जो है, चेंज इन क्वांटिटी हम ये ढूंढ सकते हैं। सर चेंज इन क्वांटिटी कैसे ढूंढ सकते हैं? पहले 100 यूनिट्स था, अब 80 यूनिट्स। तो सर इफ वी से मेरी जो डिमांड है वो 20% से कम हो गई,
तो इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे मिलेगा चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस मिलेगा। तो वट एवर द आंसर विल बी देयर, हम उसको ओल्ड प्राइस में ऐड कर देंगे तो हमें न्यू प्राइस मिल जाएगा। फिर से मैं बता देता हूं हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ईडी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, इलास्टिसिटी इज -3। सर -20% इसलिए मैंने इधर लिखा क्योंकि मेरी डिमांड कम हुई है, तो उसका जो फॉल है वो माइनस में आएगा क्योंकि कम हुआ है। और चेंज इन प्राइस हम ढूंढेंगे, तो सर -20% अपॉन -3%, आंसर इज समथिंग कॉल्ड 6.66, दैट इज 6.6%। अब ये जो चेंज आया है ये मेरा चेंज इन प्राइस है, चेंज इन प्राइस। तो सर जब मैं ओल्ड प्राइस में, तब मुझे जो नया प्राइस ढूंढना है, न्यू प्राइस, दैट इज प्राइस 2, उसको मैं क्या करूंगा, 6 प्लस 6.67%, 6 प्लस 6.67%। तो जब हम इसको कंसीडर करते हैं कैलकुलेटर पे, 6 प्लस 6.67%, तो आंसर समवेयर अराउंड आ रहा है 6.4। तो योर न्यू प्राइस इज 6.4, योर न्यू प्राइस इज 6.4। 80th क्वेश्चन का आंसर आएगा सी। 80th क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सी। Now let's go with the new question. If total revenue of the goods increases, if total revenue of the goods increases with increase in its price, if total revenue of the goods increases in its price, the demand for goods is said to be inelastic. क्योंकि TR is increasing with increase in the price. TR is increasing with increase in the price. ये तो इनइलास्टिक यानी लेस देन 1 हो जाएगा, रिलेशन डायरेक्ट हो गया। सर प्राइस बढ़ रही है, समझ में आ रहा है, प्राइस बढ़ रही है, टोटल रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू। तो हम बोलेंगे ईडी इज लेस देन 1। क्या बोलेंगे, ईडी इज लेस देन 1, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट रिलेशन है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, which of the following statement is not true? While determining price elasticity of demand, while determining price elasticity of demand, not true पूछा है, not true। तो जब हम elasticity of demand कैलकुलेट करते हैं तो इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो ट्रू नहीं है, तो समझते हैं सर। गुड्स विल हैव अ क्लोज और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैव हाईली इलास्टिक डिमांड कर्व, greater the proportion of income spent on the commodity, lesser will be the elasticity of demand। नहीं, इनकम और डिमांड का रिलेशन डायरेक्ट होता है और यहाँ पे इन्होंने बताया लेसर। जैसे जैसे इनकम बढ़ता है वैसे वैसे सर खर्चा भी बढ़ रहा है, तो लेसर इलास्टिसिटी नहीं मोर इलास्टिसिटी होता है। तो ट्रू नहीं है वो पूछा है, तो ये तो ट्रू नहीं है सर। ग्रेटर द proportion of income spent on the commodity, the lesser it will be the elasticity। सर ये रॉन्ग है। Commodities for which quantity demanded rises only up to a certain level of income and decreases with increase in the income। जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाएगा कौन से गुड्स की डिमांड कम होते जाएगी, सर इंफीरियर गुड्स। इनकम का और इंफीरियर गुड्स का जो रिलेशन होता है या डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स का रिलेशन इनवर्स होता है। तो जैसे जैसे पर्सन इज अर्निंग मोर इनकम, वो धीरे धीरे कौन से गुड्स खरीदना कम कर देगा। तो लिखा है क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस ओनली अप टू सर्टेन लेवल and as of income and decreases with the increase in income। the more income you have, less demand for inferior goods। 83 का आंसर आ जाएगा बी। when total utility is increasing at increasing rate, marginal utility is decreasing but remain positive। सर जब TU max होता है तब MU 0 होता है और जब TU fall होता है तब MU नेगेटिव जाता है ना सर। तो काफी सिंपल है, मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑलवेज डिक्रीजिंग सर, एमयू का तो नेचर ही है, एज द स्टॉक इंक्रीजेस एमयू कीप्स ऑन फॉलिंग। इट वाज अ सिंपल क्वेश्चन दे आस्क्ड यू फॉर May 25। ओवरऑल पेपर इज इजी। ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स फ्रॉम 100 to 110, quantity supply increases from 150 to 200 unit। Calculate elasticity of supply using arc elasticity method। Using which method? Arc elasticity method, and that too arc elasticity of supply। तो काफी सिंपल है सर। ES फॉर्मूला बैठा बिठाया है, ES इज इक्वल्स टू क्या है, ES इज इक्वल्स टू
200 minus 150. अच्छा, what is 200? Sir, it is Q2. What is 150? It is Q1. एक मिनट, supplied increases from 150 unit to 200 unit. हाँ, to 200, तो वो Q2 है, न्यू क्वांटिटी. चार चीजें देखनी होती है, Q1, Q2, P1, P2. P1 is original price, P2 is new price, Q1 is original quantity and Q2 is new quantity. तो 200 minus 150, 200 plus 150 into 110 plus 100 and 110 minus 100. बैठा बिठाया सही सही फॉर्मूला है. 50 plus 350 into 210 upon 10. इस सबको जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3. बैठा बिठाया सही सही चीज है सर, 1 मार्क दे दिया हमको एक फॉर्मूला लगा के, है ना सर. आर्क इलास्टिसिटी उन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो उसका एक फॉर्मूला है सर कि Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 प्लस Q1. और सप्लाई है, हाँ, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, सप्लाई, आर्क इलास्टिसिटी सप्लाई. नेक्स्ट, तो आंसर इज ऑप्शन बी. नाउ the rate at which, okay, the rate at which consumer is prepared to exchange goods X and Y holding the level of satisfaction is constant. The concept is marginal rate of substitution, that how much quantity of Y you can substitute for X or how much quantity of X you can substitute for Y, the rate, and that rate is known as marginal rate of substitution, MRS. The rate is MRS. It was simple, 86 का आ जाएगा B. The form of capital which performs its function in a production in single use and is not available for further use. Which capital it is? Fixed capital नहीं, that to stay remains in the production for longer period of time. Circulating capital, हाँ जी, fuel, seeds, ये सब जो होते हैं ये सर्क्यूलेटिंग कैपिटल है. वंस इट इज यूज्ड इट इज यूज्ड. अगली बार प्रोडक्शन करना है तो इनकी जरूरत वापस पड़ेगी. दिस इज कॉल्ड विच कैपिटल? सर्क्यूलेटिंग कैपिटल. बोला ना, सिंगल यूज. एज द प्रोडक्शन एक्टिविटी कंप्लीट, सर्क्यूलेशन कैपिटल ऑल्सो कंप्लीट. नेक्स्ट प्रोडक्शन बैच में, नेक्स्ट प्रोडक्शन साइकिल में फिर से इनकी जरूरत पड़ेगी. सर्वाइवल, ग्रोथ, एक्सपेंशन comes under the which of the following objective of enterprise? There are 5 to 6 objectives of enterprise: organic objective, economic objective, social objective, national objective, human objectives. But survival, growth, expansion, ये कौन से objective हैं? ये organic objectives हैं. कौन से objectives हैं? Organic objectives. तो 88 का आ जाएगा A. When two goods are complementary, the cross elasticity between them is dash. Cross elasticity is applicable only in case of two goods, that is complementary goods and substitute goods. What is complementary goods? किसी का प्राइस, किसी की डिमांड. प्राइस किसी का चेंज हो रहा है, डिमांड किसी की चेंज हो रही है. तो सर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, बचपन वाला एग्जांपल जो हम सालों से देते हैं सर, कि if price of petrol went up, demand for petrol car went down. बचपन वाला एग्जांपल कि if price of petrol went up, demand for petrol car went down. Which relation it is? Inverse relation. Inverse यानी कि negative. याद रखना, cross elasticity between complementary goods is negative. Cross elasticity between complementary goods is negative. Cross elasticity between substitute goods is positive. बचपन वाला another example, चाय कॉफी. If price of coffee went up, demand for tea went up. Again, substitute goods है, same है ना. Cross elasticity, किसी का प्राइस, किसी की डिमांड, applicable in case of complementary and substitute. प्राइस किसी का चेंज हुआ, डिमांड किसकी चेंज हुई, दोनों सब्सटीट्यूट है. तो याद रखना, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में जो इलास्टिसिटी होती है वो नेगेटिव होती है, और सब्सटीट्यूट गुड्स के केस में जो इलास्टिसिटी होती है वो पॉजिटिव होती है. तो सब्सटीट्यूट के ऊपर अगर क्वेश्चन है तो पॉजिटिव आएगा. अनरिलेटेड गुड्स में 0 हो गया. नाउ Which of the following is not true? पहले तो not true पूछा है भाई. About the relationship between AP and MP. हाँ तो देखो, अगर हम ऐसे एक अप्रोक्सीमेट डायग्राम बनाएं, सो ये MP हो सकता है और ये AP हो सकता है. और क्या हो सकता है मतलब है ही. When average product rises,
as a result of increase in the quantity of variable input, marginal product is more than average. हाँ सर, MP is greater than AP, ये तो सही है. इस पॉइंट पे जो है वो दोनों इक्वल होते हैं, MP is equals to AP, और इस पॉइंट के बाद वक्त हालात जज्बात बदल जाते हैं, AP is greater than MP. ठीक है, तो ए ऑप्शन तो राइट है. When average product is max, marginal product is equal to average product. हाँ, ए लिसन टू मी, AP एंड MP, AP जब मैक्स है तब MP उसको वहां क्या कर रहा है, वहां से वो निकल रहा है, गुजर रहा है, तो ये वो पॉइंट है, तो ये भी राइट है. When average product falls, marginal product is less than average. हाँ, जब AP सर धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ तो उस वक्त मार्जिनल प्रोडक्ट तो कम था, ये राइट है. When average product is negative, सर AP कभी भी नेगेटिव होता ही नहीं, एपी हमेशा पॉजिटिव है. भले शुरू में वो इंक्रीज होगा, फिर आगे जाके वो भी थोड़ा सा फॉल करेगा, लेकिन एपी जो है, एपी एवरेज प्रोडक्ट कभी नेगेटिव होता नहीं. मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एपी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर. 90th का आंसर है डी. टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग इन विच स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन. टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट डिक्लाइनिंग. तो सर अगर इसी में मैं टीपी ले लूं, टीपी, इसी में मैं टीपी ले लूं, ये वो होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वेयर माय एमपी इज मैक्स, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वहां होता है टीपी पे. फिर सर जहां पे मेरा टीपी मैक्स है और एमपी जीरो है, ये पॉइंट ऑफ सैचुरेशन है. इसके बाद से टीपी डिक्लाइन होना शुरू होता है. टीपी राइजेस, टीपी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, रीचेस मैक्सिमम, देन कांस्टेंट, देन फॉल. तो ये जो दिख रहा है आपको, ये मेरा कौन सा कर्व है, ये टोटल प्रोडक्ट कर्व. तो टोटल प्रोडक्ट कर्व कौन से स्टेज से फॉल होना शुरू होता है? टोटल प्रोडक्ट स्टेज 3 से, यानी नेगेटिव रिटर्न्स से फॉल होना शुरू होता है. स्टार्ट डिक्लाइनिंग पूछा, स्टार्ट डिक्लाइनिंग, तो हमने एक रफ एस्टिमेटेड डायग्राम बाजू में बनाने की कोशिश की. ठीक है ना. जनरल केस में ये होता है हमारा स्टेज 3. ठीक है, यहाँ होता है स्टेज 2, और ये जो है ये है स्टेज 1, जहाँ पे एपीएमपी एक दूसरे को मिलते हैं. रिटर्न्स टू स्केल, ये लॉन्ग रन का सवाल आ गया सर. रिटर्न्स टू स्केल रिफर्स टू, ओके, दे आर जस्ट आस्किंग रिटर्न्स टू स्केल होता क्या. तो इट इज वेरी सिंपल. चेंजेस इन द आउटपुट एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर. Changes in the output as result changes in the all factors of production, because returns to scale मतलब long run production function, and long run production function में all factors are variable, not only fixed. all factors, all मतलब दो ही होते हैं, labor and capital. all factors are variable. ठीक है, so your answer for this is B, linear homogeneous production function. Which function? Linear homogeneous production function. Sir, constant returns to scale क्या है ये सर? Linear homogeneous production function. Input rises by 10%, output also rises by 10%. Linear homogeneous production function, constant returns to scale. Answer is B. The minimum quantity of various inputs that are required to yield a given quantity of output. Which relation? Input output relation. Input output relation is nothing but what? Production function. Input output relation is nothing but what? Production function. Now budget line, next concept. Budget line or budget constraint line, which shows the various alternative of combination of two factor which the firm can buy with the given outlay. Which particular line is called? अरे इधर budget लिखा है, इधर budget constraint लिखा है, तो they are talking about money only, है ना सर. तो indifference curve तो होता है सर maximum satisfaction. आइसो प्रोडक्ट होता है, या ऐसे कह सकते हैं सेम सेटिस्फैक्शन एट ऑल लेवल. आइसो प्रोडक्ट होता है सेम आउटपुट एट ऑल लेवल. आइसो कॉन्ट और आइसो प्रोडक्ट दोनों एक ही है. सर आपका आंसर आएगा आइसो कॉस्ट लाइन. कि सर आइसो कॉस्ट when two factors which a firm can buy with given outlay, that is iso cost. So sir 95th का आंसर आएगा C. Now numericals. Use the following data, answer the question number 96, 97. The average fixed cost of 2 unit of output. Average fixed cost. So AFC at second unit formula is like TFC upon Q.
तो इसके लिए मुझे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए, बट सेकंड के लिए चाहिए सेकंड। अब टोटल कॉस्ट है 410 सेकंड यूनिट ऑफ आउटपुट का। लेकिन सर क्यों जाना है टोटल कॉस्ट तक जब हमारे पास टीसी ऑफ जीरो आउटपुट इज नथिंग बट टीएफसी, फिक्स्ड कॉस्ट प्रीवेल्स इवन एट द जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। आप प्रोडक्शन करो या ना करो फिक्स्ड कॉस्ट तो लगेगा। तो सिंपली 200 divided by 2 comes 200. Simple. Option is B. Now diminishing marginal returns starts to occur between units. Which units? Dash unit. Diminishing marginal returns. MR गिर रहा है, MR कम हो रहा है, तब उसके लिए पहले मुझे MR marginal returns, तो for that I need to calculate marginal cost. I need to calculate what? Marginal cost. तो सर मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला तो काफी सिंपल है, TCN माइनस 1, दिस इज फॉर्मूला फॉर मार्जिनल कॉस्ट। और जो चेंज इन यूनिट्स है वो भी कांस्टेंट है, 0 1 2 3 4 5, तो एक से ही चेंज हो रहा है। तो 310 माइनस 200 तो 110 हो गया, 410 माइनस 310 100 हो गया। एमसी शुरू में कम ही होता है। अगर आपको मार्जिनल कॉस्ट का नेचर समझना है, एमसी मार्जिनल कॉस्ट का नेचर समझना है, तो इट गोज लाइक दिस। ये होती है वो कर्व। तो एमसी शुरू में प्रोडक्शन स्टार्ट होते होते कम होता है, रीचेड इट्स मिनिमम एंड देन वहां से राइज होना शुरू होता है। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न कहां से शुरू होता है वही उन्होंने पूछा है। तो जहां से एमसी इंक्रीज होना शुरू, जहां से एमसी क्या होता है? इंक्रीज होता है। इंक्रीज यानी कॉस्ट बढ़ रहा है तो रिटर्न्स कम हो रहा है। चलो वापस एक बार कैलकुलेट अधूरा काम पूरा करते हैं सर। 410 से तो 500 में से 410 गया 90। अब यहां तक तो मार्जिनल कॉस्ट कम ही होते जा रहा है। 604 और 500, लेकिन 500 में से 410 गया 604 से 500 सर। अब यहां आया 104। ओह, सो फ्रॉम थर्ड यूनिट एंड फोर्थ यूनिट यहां से मेरा मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रहा है सर। आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 3 and 4। ऑप्शन इज 3 and 4। Which of the following is not the feature of perfect competition market? Which of the following is not the feature of perfect competition market? Very large number of sellers कह सकते हैं, homogeneous product हाँ जी, inelastic demand, firms are the price takers. Yes, firms are the price taker because price are decided by market forces, industry. Sir, answer is inelastic demand. ये जो है ये perfect competition market का feature नहीं है। A firm should not produce at all if, ऐसा कौन सा सिचुएशन है जहां फर्म को प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए? तो सर AR is greater than AVC, सर एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। हाँ, वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रहा है सर। एवरेज रेवेन्यू इज एवरेज कॉस्ट, अरे ये तो नॉर्मल प्रॉफिट है, कर सकते हैं। AR इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, हाँ जी, ATC एंड AC एक ही होता है बॉस। तो इफ AR इज ग्रेटर देन AC, दिस इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, दिस इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सर एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रहा है। याद रखना, अगर वेरिएबल कॉस्ट रिकवर नहीं हुआ तो गांव जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? गांव। एंटरप्रेन्योर और लेबर दोनों एक ट्रेन में बैठ के गांव जाएंगे सर। ट्रेन का भी पैसा बचेगा कि नहीं पता नहीं, वेरिएबल कॉस्ट रिकवर नहीं हो पाए। सो सर इफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर नॉट मेट, फर्म शुड नॉट प्रोड्यूस एट ऑल। तो 99 का आएगा सी। नाउ द लास्ट वन फॉर दिस पेपर, 100, क्वेश्चन नंबर 100। Calculate MR when AR is 45 and price elasticity is 3। बोले MR कैलकुलेट करना है। कहाँ से ये क्वेश्चन? सर दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 4। सर बैठा बिठाया फॉर्मूला है, सही करना है। MR इज इक्वल्स टू AR into E minus 1 upon E। AR, MR and elasticity is the concept, chapter number 4। सर MR ढूंढना है, AR is 45, इलास्टिसिटी 3 माइनस 1 अपॉन 3, सो 2/3 आ जाएगा सर। तो 45 इंटू 2/3, अरे डांस क्लास स्टेप का भी मार्क मिलेगा। आंसर इज 30। सो आंसर दिया हुआ है, हाँ आंसर दिया हुआ है।
आंसर इज 30, तो 100 का आएगा सी. So here we have completed the solution paper solving of CA Foundation May 25 attempt. दो क्वेश्चन में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी, एक में साइन का प्रॉब्लम और एक में प्रॉपर डेफिनेट आंसर नहीं दिया हुआ. बाकी ओवरऑल पेपर आप देखेंगे तो इट वाज इजी. 5 to 6 क्वेश्चंस वर देयर जहां पे मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल था. ओवरऑल अगर हम देखें मे का पेपर जो है वो बाकी अटेम्प्ट्स के मुकाबले क्वाइट इजी था. Yes, so that's it from my side for this session. All the very best for September people, September 25 CA aspirants. Yes, do your best, all the best. Rest things side hata do. Thank you so much. Bye bye. Chirag Thakkar signing off.